Hello students, hope all of you are doing well in this festive season, Christmas and New Year. Now today I am going to finish the part 2 of your poem on killing a tree from your Beehive book of class 9th. Earlier I have given the explanation of the first 2 stanzas of your poem. Now I am going to finish the remaining part of this particular poem. Now, a few comments I have received from the student side that some of the students wants the explanation in Hindi as well. So, in this session, in this particular video, I will explain in both Hindi and English. So, now I am going to start. Now, look at the third stanza. What the poet is saying, that no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped and tied and pulled out, snapped out. Now the poet is saying, poet ये कह रहा है हमें कि एक पेड़ को अगर मारना है, if you want to kill a tree, what should you do? आपको क्या करना है? अगर एक पेड़ को मारना है, सो हैकिंग और चॉपिंग से कुछ नहीं होगा, उसको छोटी मोटी घाव देने से कुछ नहीं होगा. अगर आपको पेड़ को मारना है तो आपको क्या करना है, वही पोएट बता रहे हैं. द पोएट इज सेइंग यू हैव टू पुल आउट द रूट ऑफ द पर्टिकुलर ट्री. आपको उसके जड़ को निकालना है धरती से खींचकर, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग? एंकरिंग अर्थ मीन्स, एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक पेड़ को, एक जड़ को कौन पकड़ के रखता है? मिट्टी पकड़ के रखता है. सो एंकरिंग द अर्थ, दैट मीन्स सपोर्टिंग. That the poet is talking about the soil, giving the protection to the soil. Now it has to be taken out, pulled out from that anchoring earth. इसे धरती से बाहर निकाल लो. It is to be roped and tied. इसको क्या करना है आपको? इसको रस्सी से बांधो, कस के बांधो, and then pulled out, snapped out. और उसको जोर से खींच कर, pulled out with a jerk. Snapped out means होता है pulled out with a jerk. So the poet suggesting the way how a tree should be killed. It is not the hacking and chopping. It has to be pulled out from the anchoring earth. उसे धरती से खींच के निकालना है, तब यो आप पेड़ को मार सकते हैं. Now moving to the next stanza. और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरीके से उसको निकाल लो, उसको जमीन से पूरी तरीके से निकाल लो. आउट फ्रॉम द अर्थ केव, आउट फ्रॉम द अर्थ केव. नाउ दैट द अर्थ केव मीन्स फ्रॉम द सॉयल. एज वी ऑल नो, द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट इज द रूट, एंड वेयर इट यूज टू बी. ये कहाँ रहता है? इट्स द ऑन डाउन द अर्थ, अर्थ के नीचे रहता है, क्रस्ट के नीचे रहता है. दैट इज कॉल्ड अर्थ केव. So we have to pulled out from the root, or we have to be pulled out the root from the earth cave. हमें उसी धरती के गोद से उस जड़ को बाहर निकाल देना है, तभी हम लोग उसको मार सकते हैं. And the strength of the tree exposed. Now once we do that, once we remove those root from the earth cave, the strength of the tree exposed. Now what is the strength of the tree? पेड़ की ताकत क्या होती है? डेफिनेटली द रूट्स. समटाइम दिस लाइन इज टू कम इन द एग्जाम्स. ऑल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, एक्सप्लेन दिस लाइन. नो, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री मीन्स द रूट. एज यू ऑल नो, द रूट्स holds the tree firmly to the ground. So that's the strength of the tree. And once it has been come out from that earth cave, and that strength is exposed. Now, next line. द सोर्स वाइट एंड वेट. नाउ जब क्या होता है ना, पेड़ को हम लोग जड़ को निकाल लेते हैं, यू विल सी दैट रूट इज लुकिंग, रूट जो दिखेगा वो सफ़ेद कलर का दिखेगा, थोड़ा सा भीगा भीगा लगेगा. भीगा भीगा लगेगा, एज वी ऑल नो, द मॉइस्चर इज देयर अंडर द ग्राउंड. पानी रहता है, नमी रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो भीगा भीगा लगता है. इट्स लुक्स वेट, एंड इट इज़ वेट, नॉट लुक्स. एंड वाइट भी लगता है इन कलर. The most sensitive hidden for years inside the earth. As you all know, it is the most sensitive part of the plant. The human body, the brain is the most sensitive part. And it is, और वो रहता कहाँ है? धरती के नीचे रहता है, धरती के गोद में छुपा रहता है, hidden रहता है, because it is so sensitive. And now when it is exposed,
as you all know what would happen to the tree. So the poet is saying once the root is out completely from the earth, then its strength exposed. And how it looks, ये कैसा दिखता है? It looks white, वो सफ़ेद दिखता है, वेट दिखता है. और पोएट ने कहा ये बहुत एक सेंसिटिव पार्ट है, एक प्लांट का बहुत एक सेंसिटिव जटिल सा पार्ट है, जैसे हमारे इंसान का ब्रेन होता है, जो कि सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ है. नाउ द लास्ट स्टैंजा. अब लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कर रहा है? देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग. बस उसके बाद तो समय की बात है ना. स्कॉर्चिंग मीन्स होता है, स्कॉर्चिंग मीन्स एज यू नो द हीट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी से वो क्या होगा? सूख जाएगा. चोकिंग हो जाएगा. चोकिंग दैट मीन्स ऑल्सो डाइंग. दैट स्कॉर्चिंग एंड द scorching means heating of the sun. Because of the heating of the sun, what it would happen to that particular root? It could get dried up. ये सूख जाएगा. सो उसके बाद समय की फेर है. जैसे आप देखते हैं कि एक पेड़ जब जड़ से निकाल के फेंक दिया जाता है, धीरे धीरे सूखने लगता है. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. आफ्टर दैट इन सन एंड एयर. और कैसे सूखेगा? सूरज की रोशनी में, हवा से. एंड सडनली इट विल बिकम ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग. धीरे धीरे उसका रंग जो है सफ़ेद से कैसा होते जाएगा? इट विल बिकम ब्राउनिंग, ब्राउनिश कलर. आप देखे होंगे सूखा हुआ पेड़, सूखा हुआ पत्ती, वो ब्राउन हो जाता है. जो टहनियाँ रहते हैं, ब्रांचेस रहते हैं. एंड इट विल बी हार्डन ऑल्सो एट द सेम टाइम. जब निकलता है धरती से, वह रूट थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है. और धीरे धीरे जैसे उसमें हवा, पानी, सूरज की रोशनी लगता है, वो धीरे धीरे कड़ा होने लग जाता है. एंड आफ्टर दैट ट्विस्टिंग एंड विदरिंग. ट्विस्टिंग वो टर्न हो जाता है. विदरिंग मीन्स तब ड्राइंग अप. एंड देन इट इज टर्न. एंड दैट मीन्स उसके बाद वो मर जाता है. इट मीट्स टू इट्स डेथ. उससे अपनी मुलाकात किससे हो जाता है? ओके, नाउ वन थिंग इज देयर. जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल Literature with Alok, and hope to meet you soon again with a next video. Thank you. Bye bye.